Good morning, everybody. So, yesterday we have started chapter number 5. What is that? Chapter number 9. Chapter 5 name. In search of peace. That is Buddha and Swami. So, what you understood from that paragraph which I taught yesterday? जानना था. So he went for वो पीस के लिए गए और फिर उन्होंने स्थापना की और उसके बाद वो गौतम बुद्ध बने. Very good, very nice. Okay, now very good. So you hope you understood now teachings. उनका जो ज्ञान है, उनका जो knowledge है, how he preached to the people, that we will learn. After attaining enlightenment, after getting knowledge. Okay, knowledgeable person, Buddha went to Sarnath where he met his old friends. So after getting his enlightenment, where he went, वो अपने दोस्त से मिलने गए, अपने जो 5 friend Brahmins थे, उनके पास वो मिलने गए. Okay, after getting this enlightenment. The first time he preached to those 5 Brahmins, जिनके साथ वो फर्स्ट साधना करने गए थे. If you remember 5 Brahmins, he went to them and he met them और उनको फर्स्ट उन्होंने सारनाथ में. Sarnath is a place is located 10 kilometers north east of Varanasi in UP. तो वहाँ पर वो गए 5 Brahmins से मिलने और उन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग उनको दिया, उनको नॉलेज दिया. Got it? Buddha's these first preaching are called Dharma Chakra Parivartan. Dharma Chakra Parivartan. तो उसे जो उन्होंने preaching दिया ब्राह्मण्स को, that was called as a Dharma Chakra Parivartan. Got it? Buddha gave very simple sermon to get rid of the mysteries of the world. He gave very simple sermon. He gave very simple moral subjects उन्होंने दिया कि लाइफ को कैसे जीने. Okay, and to get rid of the mysteries, लाइफ में कितने डिफिकल्टीज है, लाइफ में कितने सॉरोज है, लोग कितने दुखी है, उससे कैसे हमें छुटकारा पाना है. So that speech Buddha gave to the people. Got it? According to him, there are 4 Arya truths. According to Buddha, he said there are 4 facts of life. The truth of life. Life की सच्चाई क्या है? एक 4 उन्होंने points बताए. The world is full of mysteries. If you see our world is full of mysteries. Sorrows are there. People are very sad. Mysteries, दुखों से भरा हुआ हमारा world. The cause of suffering is greed or strong desire. अब लोग दुखी है, पूरा वर्ल्ड बोल रहे हैं ये गौतम बुद्धा की the world is full of mystery. अब ये मिस्ट्री का मेन कारण क्या पता? दुख का कारण. Because लोगों के अंदर का लालच, desire, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये बहुत सारा चाहिए. So उनके कारण लोग दुखी हो रहे हैं. Yes or no? Third, destructions of suffering is renunciations of desire. अगर आपको दुख से छुटकारा पाना है तो डिजायर को छोड़ दो, लालच को छोड़ दो. अपनी जो डिजायर, अपनी जो इच्छा है, इच्छा रखो. ऐसा नहीं कि इच्छा रखने का ही नहीं, सिंपल. आपको सिंपल मिल गया. If you desire more, you will be unhappy, you will be sad. Adoptions of octagonal path means astang marg eliminates desire, means पूरा अपने डिजायर को एलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो. तब आप जियोगे अपनी लाइफ खुशी से. यू विल फील योर लाइफ हैप्पीली. इफ यू डिजायर को एलिमिनेट कर दोगे, तो रिमूव कर दोगे, उसको बोलते हैं ऑक्टेगोनल पाथ. अस्तंग मार्ग, उस रास्ते
प्लेस में जाओ जहाँ पर इच्छा मत रखो। These four truths explained by Buddha are known as Buddhist principles. इन्होंने जो 4 important principles दिए ना, उसको principles, उनका जो preaching था उसको बोलते हैं Buddhist principles. Also known as सम्यक दर्शन। उनका जो रियल फैक्ट है लाइफ का उन्होंने वो दिया। सम्यक मीन्स इन रियलिटी, ओके, पूरी तरह से अच्छी तरह से आप भगवान के हो जाओ एंड जस्ट डिजायर को छोड़कर। नाउ नो दिस, सम्यक साइट, सम्यक रिसॉल्व, सम्यक स्पीच, ट्रूथ स्पीच दो। सम्यक का मतलब है प्रॉपरली, सही तरह से, ओके। तो अगर आपको लाइफ में अच्छी तरह से जीना तो अच्छी तरह से आप ये सब चीजें करो। सम्यक स्पीच, सम्यक डीड्स, अच्छे काम करो। सम्यक अर्निंग, कभी भी धोखाधड़ी मत करो, अच्छे से मेहनत से पैसा कमाओ। सम्यक एक्सरसाइज, अच्छी तरह से बॉडी के अच्छे के लिए एक्सरसाइज करो। सम्यक मेमोरी, सम्यक समाधि, सम्यक इज ए संस्कृत वर्ड, इट मीन्स प्रॉपरली, इट मीन्स प्रॉपरली। Now Buddha as a great reformer, तो बुद्धा हमारे great reformer भी थे, who did frequent changes to society wherever it's needed, okay? तो बुद्धा as a great reformers मतलब क्या है? सोसाइटी में जो एविडेंस हो रहे थे, जो गलत काम हो रहे थे, उसको चेंज करना, नया चेंजेस लाना हमारे सोसाइटी में। So that was done by Gautam Buddha. Buddha was a great religious and social reformer. Social reformer means society में changes लाना अच्छे कामों के लिए। Yes, he was a Buddhist religion. उन्होंने कौन सा religious accept किया? He accepted Buddhist religious. He worked lifelong time to eliminate the pollutants in religions and society. उन्होंने बहुत long life तक काम किया। सोसाइटी में जो बैड थिंग्स थे, पॉल्यूटेंट्स थे, जो अच्छे काम नहीं चल रहे थे, उनको रिमूव करने के लिए उन्होंने बहुत सालों तक मेहनत की। टीचर, ये जो बुद्धिस्ट धर्म है वो सिर्फ गौतम बुद्धा ने बनाया था कि उससे पहले भी कोई कर चुका था? नहीं, गौतम बुद्धा ने ये स्टार्ट किया रिलीजियन, उस समय से स्टार्ट किया। तो उसके पहले किसी ने नहीं, ओके। He had many disciples, उनके शिष्य, disciples मतलब students. So many people followed him and they called as a disciples of Gautam Buddha. मतलब उनको जो follow करने लगे वो उनके शिष्य बन गए, students बन गए। So many students came in shelter of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा की तरह ही वो काम करने लगे। Many kings and states were encouraged by his human religion. He did the following reformers. Many kings and states were encouraged by, और many kings और जो humans थे उनको encourage मिला इन गौतम बुद्धा से। Now he did the following reforms. अब हम reforms में देखते क्या changes किया सोसाइटी में। Denial of God and soul. Buddha denied God and soul and gave importance to karmaism. भगवान ने बोला कि गौतम बुद्धा ने क्या बोला कि आप भगवान नहीं है यहाँ पर, ना ही तो आत्मा होती है, ना ही तो भगवान होते हैं, ना ही तो आत्मा होती है। खाली जो आप कर्म करते हो अच्छा, उसका ही फल आपको मिलता है। Got it? According to him, if there was God, sorrows would not have been there. अगर भगवान होते तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। Yes or no? So according to him, denied मतलब नहीं है उनके लिए। महात्मा और भगवान कोई नहीं होता है, खाली आपका कर्मइज्म मतलब आप जो कर्म करते हो, काम करते हो, उसको भगवान देता है, उसी कारण ही आप फल पाते हो। God's sorrows would not have been there. Instead of indulging in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present. तो अच्छे moral subject लेकर वर्चुअस काम करके, हैविंग शोइंग हाई मॉरल शेयर, मतलब अच्छा काम करके अगर आप लाइफ में जी रहे हो, सो दैट इज अ गुड लाइफ एंड दैट इज अ वर्चुअस लाइफ ऑफ पीपल। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, बट आपको वो मानते नहीं थे, गौतम बुद्धा नहीं मानते थे। गौतम बुद्धा वर नॉट बिलीविंग ऑल दिस। व्हाट इट?
भगवान ने भी नहीं भगवान, वो बोले कि आप अच्छा कर्म करो, वही आपके लिए। टीचर कहते हैं कि बुरे कर्म की बुरी सजा है, हाँ। बुरा कर्म की बुरी सजा है। Opposition to rituals. He opposed rituals performed in Hinduism and the sacrifice of animals in the yagnas. Rituals मतलब जो आपके रीति रिवाज होते, परंपरा होती है। किसी की परंपरा क्या होती है हिंदुइज्म में, आपको एनिमल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, ये यज्ञ में मतलब यहाँ पर सैक्रिफाइस एनिमल्स को मार कर बलि चढ़ाई जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब प्रथा आप छोड़ दो। हिंदुइज्म में ज्यादा चलता था पहले, आज नहीं है, बट पहले ऐसे रिचुअल्स थे कि यज्ञास होते थे ना, जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसमें एनिमल को सैक्रिफाइस करना पड़ता था, बलि चढ़ाते थे। Yes, yes. He said that non-violence is the highest value. अगर आप किसी को मारना मतलब वो भी एक वायलेंस की तरह है, हिंसा है, वो अच्छा काम नहीं है। The greatest duty of all human beings is to treat animals non-violently. उनको भी अच्छा ट्रीट करना, even though they are animals, we should treat non-violently. हिंसा करके नहीं, मार के नहीं, उनको भी non-violent, बिना हिंसा के किए हुए, बिना उनको मारे, मार कर उनको खाए, बलि चढ़ाए। ओके, तो सबका वैल्यू होता है। नाउ नेक्स्ट, oppositions of discriminations of high and low. अब discriminations मतलब भेदभाव भी वो नहीं चाहते थे कि किसी के बीच में भेदभाव हो। At this time, Hinduism was divided into 4 varnas: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। उस समय क्या था, कास्ट सिस्टम्स वर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। सपोज ब्राह्मण हाई स्टेटस माने जाते थे, जो पुजारी, क्षत्रिय मतलब जो सोल्जर्स होते थे, ये सेनापति या जो भी सोल्जर्स, वैश्य मतलब जो बिजनेस करते थे, वो ग्रुप वाले पीपल, शूद्र मतलब जो क्या बोलते हैं ये गटर वगैरह साफ करने वाले लोग। तो उनके हिसाब से 4 उन्होंने डिवाइड कर दिया था कास्ट को उस समय। बुद्धा अपोज दिस वर्ण सिस्टम। गौतम बुद्धा ने ये भी अपोज किया कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कास्ट हाई या लो कास्ट होनी चाहिए, ऑल आर इक्वल। He said, being born in a high family does not make anyone great. He becomes great by his deed, by his conscience, by following the path of truth and non-violence. He highly opposed the discriminations of high and low prevailing in the society. Yes, गौतम बुद्धा को ये भी पसंद नहीं था कि कोई हाई क्लास सोसाइटी के अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। We are high quality by our own deeds. अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, वही आपको हाई क्लास में पहुंचाएगा। So that deed is the best for this high class. तो ये भी इनको अपोज कर रहे थे कि कोई मुझे पसंद नहीं है, जो भी वरना 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। So that is also he opposed, discriminated, डिफरेंस जो हो रहा है सोसाइटी में, वो ये पसंद नहीं करते। और सबको ट्रूथ और नॉन वायलेंस की राह में चलना चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। व्हाट इट इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन, बुद्धा गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू विमेन एज टू मैन। अब गौतम बुद्धा ने क्या बोला, इक्वल इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बट गौतम बुद्धा ने फर्स्ट किसको इम्पोर्टेंस दिया, विमेन कंपेयर टू मैन। He said that the path of nirvana is not only for man. Women can also achieve nirvana through sadhana and duty. Nirvana means मोक्ष, मरने के बाद हमें मोक्ष मिलता है। मरने के बाद जो मोक्ष मिलता है ना, उससे बोलते हैं निर्वना। Got it? शांति, मरने के बाद पीस चाहिए हमें, मोक्ष। सो वो विमेन को भी मिलना चाहिए। ओके, निर्वना। बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट इन द शैडो ऑफ द बोधि ट्री ऑन वैशाखी पूनम। सबको पता है कि उनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला था, बोधि ट्री ऑन वैशाखी पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन। बाय एक्वायरिंग नॉलेज, बुद्धा
society and religion in India. After getting knowledge, after acquiring, after getting knowledge, continue उन्होंने लोगों के पास जाकर प्रीचिंग किया, लोगों को नॉलेज स्प्रेड किया, पीस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सब उन्होंने अच्छे जो बातें हैं वो लोगों के अंदर फैलाई, स्प्रेड, प्रीचिंग मतलब नॉलेज देना. He led many people towards righteous path. उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छे राह में जाने का मार्ग बताया. ये राइट चीज़ क्या होती है? Perfectly that showed by Gautam Buddha to many people. Giving preachings of truth and non-violence, he opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. गिविंग प्रीचिंग, वो प्रीचिंग तो देते थे ट्रूथ और नॉन वायलेंस, कि सच्ची राह में चलो, किसी को भी हर्ट नहीं करने का. नॉन वायलेंस मतलब मारा मारी किसी को नहीं करने का. एंड ही ऑल्सो सेड कि एनिमल्स किलिंग, जो एनिमल को मार कर खाते हैं, वो भी वो अपोज थे. यस, तो नॉन वेजिटेरियंस जो एनिमल्स को काट कर खाते थे, अपोज, ही अपोज ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained nirvana. तो कौन सी ईयर में वो उनका डेथ हुआ? 80 years in Kushinara and attained nirvana. उन्हें मोक्ष मिल गया, समाधि बन गई. बैठे बैठे वो यज्ञ कर ही रहे थे, मोक्ष ध्यान में थे, उसी समय वो समाधि में वो मोक्ष हो गए. But his ideas and religion is still alive in the world. भले उनकी डेथ हो गई, बट आज भी उनके जो प्रीचिंग्स है, नॉलेज है, आज भी हमारे सब लोगों के दिल में जिंदा है. तो ऐसे थे हमारे गौतम बुद्धा. होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड यू ऑल विल फॉलो हिज प्रीचिंग्स. उनके जो प्रिंसिपल्स थे हम सबको फॉलो करना चाहिए. ओके, थैंक यू.